Hello dear children, welcome to the class. Now in today's class, we'll be solving one query which we have received from our student. The problem has been taken from the book T.S. Garewal 2021 edition from the chapter Accounting for Partnership Firm Fundamentals. This is problem number 60 given on page number 2.92 in the book T.S. Garewal 2021 edition. The problem says, Simrat and Veer are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 31st of March 2021, after closing the books of accounts, their capital accounts stood at rupees 4,80,000 and 6 lakh respectively. That means these are their closing capital. On 1st May 2020, Simrat introduced additional capital of rupees 1,20,000. So this is additional capital, and Veer withdrew 60,000 from his capital. Fine. Veer has withdrawn 60,000 from his capital. On 1st October 2020, Simrat withdrew 2,40,000 from her capital, and Veer introduced rupees 3 lakh on the same date. Now, interest on capital is to be allowed at the rate of 6% per annum. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 6% per annum had been omitted. Interest on capital हम देना भूल गए हैं. Profit for the year ended 31st March 2021 amounted to rupees 2,40,000, and partners' drawings had been Simrat to 1,20,000 and Veer 60,000. Now, beta, there are two drawings which are given in the question. First is given on the two dates. On 1st of May 2020, you can see that Veer has withdrawn 60,000 from his capital. Now, this drawing on 1st of May 2020 by Veer is drawings out of capital. Similarly, on 1st of October 2020, Simrat withdrew 2,40,000 from her capital. So that is also drawings out of capital. Fine. Whereas the drawings given in the last line, that is Simrat 1,20,000 and Veer 60,000, these are the drawings out of profits. Now let us first understand that what are these two drawings and how are we going to show when we are going to show both the types of drawings when we are going to prepare the capital accounts. Because in this question also we have to compute interest on capital if capital are fixed and fluctuating. अब मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है. मुझे पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे दोनों वे में निकालना है कि अगर मुझे दिया है कि पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड हैं, then what is going to be my opening capital, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम दिया जाएगा. और अगर पार्टनर्स के कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, then also I need to calculate that what is going to be my opening capital if my partners capital are fluctuating. So before starting the solution of this problem, let us see at the format of your partners capital account when the partners capital account are fixed and when the partners capital account are fluctuating. चलिए बेटा एक recapitulate कर लेते हैं जल्दी से. See, there are two types of partners capital account. एक होता है हमारा fixed capital account method और दूसरा होता है हमारा fluctuating capital account method. फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर का करंट अकाउंट. लेकिन फ्लक्चुएटिंग में पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है. अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही फॉलो करना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए. फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं. फाइन. अब
हम आ जाते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट में। जब पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हम फॉलो करते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स। फर्स्ट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस इज द फॉर्मेट। This is the debit side of the partners capital account and this is the credit side of the partners capital account. हमें पता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में जब भी इंक्रीज होता है क्रेडिट होता है, जब भी कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। फाइन। पार्टनर्स के फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया होगा, हम उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेट अस से टू पार्टनर्स आर देयर एक्स एंड वाई, और पार्टनर्स के जो भी बैलेंस फिक्स कैपिटल में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वो हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। फिक्स कैपिटल में जो भी एडिशन होता है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल कैपिटल, दैट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड वील रिकॉर्ड बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, और हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे क्रेडिट साइड पर। पार्टनर्स की कोई ड्रॉइंग होती है आउट ऑफ कैपिटल, ड्रॉइंग से कैपिटल रिड्यूस होती है, तो हम ड्रॉइंग्स को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, एंड दिस इज विड्रॉल ऑफ कैपिटल। अब बेटा ये जो ड्रॉइंग्स है पार्टनर की, दीज आर बेसिकली ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ये ड्रॉइंग्स पार्टनर के फिक्स कैपिटल में से ड्रॉइंग्स हैं और इनको हम टर्म देते हैं, नाम देते हैं ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। अब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होती है। जैसे कि अभी हमने जब क्वेश्चन रीड किया था तो उसमें लिखा था कि 1 मई को और 1 अक्टूबर को both the partners have withdrawn the amount from their capital. So those were drawings out of capital. और drawing out of capital के बाद रिड्यूस करने के बाद जो आपके पास बैलेंस बच जाता है, that is to balance close down, that we are going to record as a balancing figure. Now the second account which we are going to prepare when fixed capital account method is followed is partners current account. Same, it has got two sides. Credit means increase in the current account and debit means decrease in the current account. जैसे हम फिक्स कैपिटल का बैलेंस लेकर आए थे, करंट अकाउंट का भी पार्टनर्स का बैलेंस होता है और करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकते हैं। अगर क्रेडिट बैलेंस होंगे तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर डेबिट बैलेंस होंगे यानी कि पार्टनर ज्यादा विड्रॉ कर चुका है बिजनेस से देन व्हाट ही हैज डिपॉजिटेड इन द करंट अकाउंट ऑफ द बिजनेस, तो इस केस में पार्टनर का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होता है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर जितनी भी एप्रोप्रिएशंस पार्टनर को मिलती हैं जिससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होती है, दैट वी आर गोइंग टू शो ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी बाय द एप्रोप्रिएशंस। सो द फर्स्ट एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट होगी करंट अकाउंट में। बाय कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव करेंगे पार्टनर तो क्रेडिट होगा करंट अकाउंट में। एंड सैलरी, व्हेन द पार्टनर इज रिसीविंग द सैलरी, that is also credited in the current account of the partner. And net divisible profit by profit and loss appropriation account is also to be taken on the credit side of partners capital account. Now let's come to the debit side. Debit side पर two drawings. अब बेटा ये वाली जो drawings है partners की, ये हम मान के चलते हैं that these are going to be drawings out of profit. करंट अकाउंट से जो पार्टनर की ड्राइंग्स होती हैं, दीज आर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। फाइन। अगेन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो हम ये मान के चलते हैं कि जो ड्राइंग्स दी हुई हैं सिंपल वो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, दीज आर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल होती हैं तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता है। तो जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है, ड्राइंग्स दी हुई थी गिवन क्वेश्चन में, वो जो लास्ट लाइन में ड्राइंग्स गिवन है, दोज आर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। एंड देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर फर्म को देता है,
तो पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाती है. इट इज टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट. नेट डिविजिबल लॉस फ्रॉम profit and loss appropriation account is also to be shown on the debit side of partners capital account. And then to balance close down. And again ये balance debit balance भी हो सकता है और credit balance भी हो सकता है. अब हम आ जाते हैं बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में, जहां पर पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है और यहाँ पर पार्टनर के फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है. क्रेडिट बैलेंस मींस योर प्लस बैलेंस, तो उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. एंड डेबिट बैलेंस मींस योर नेगेटिव बैलेंस, यानी कि पार्टनर ज्यादा विड्रॉ कर चुका है बिजनेस से जितना उसने अपनी कैपिटल डिपॉजिट कराई थी. देन इन दैट केस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट ऑन दी डेबिट साइड. अब बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जो पार्टनर के बनते हैं बिल्कुल सिमिलर होते हैं जैसे पार्टनर के करंट अकाउंट बना था. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होगा, कमीशन पार्टनर रिसीव करता है, इससे कैपिटल इंक्रीज होगी, सैलरी से कैपिटल इंक्रीज होगी, सो कमीशन और सैलरी भी क्रेडिट होगी. हाँ, और अगर पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, सो बाय कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. फाइन. For the introduction of additional capital, we are going to show the additional capital on the credit side of your partner's fluctuating capital account. And again, by net divisible profit transferred from profit and loss appropriation account, ये हम partners के credit side पे show करेंगे. डेबिट साइड पर आ जाते हैं टू ड्रॉइंग्स. अब बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब बन रहा होता है तो यहाँ पर दोनों ही ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और आउट ऑफ प्रॉफिट्स हम शो करते हैं, कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता. एंड देन टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू प्रॉफिट टू नेट डिविजिबल लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि लॉस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कम हो जाएंगे. सो वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द डेबिट साइड ऑफ अवर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. एंड देन टू बैलेंस क्लोज डाउन. एंड अगेन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंसेस ही हो सकते हैं. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम. चलिए बेटा हम अपने सॉल्यूशन पे आ जाते हैं. हमारे क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, एक है सिमरत और दूसरा है बी. अब बेटा इनके क्लोजिंग कैपिटल हमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में. क्लोजिंग कैपिटल की जो वैल्यू दी हुई है that is on 31st of March 2021. सिमरत की क्लोजिंग कैपिटल है 4,80,000 और बी की क्लोजिंग कैपिटल है 6 लाख. अब नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि 1 मई को सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी. तो ऑब्वियसली सिमरत की एडिशनल कैपिटल, अगर मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो एडिशनल कैपिटल को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो लेस 1,20,000 फॉर द एडिशनल कैपिटल which Simrat has introduced on 1st of May. Additional capital जो कि 1st of May को 1st of May 2020 को इंट्रोड्यूस की थी सिमरत ने, उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. और इसी डेट को बीर ने विड्रॉ किया था ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल थी बीर की, तो उन ड्रॉइंग्स को हम ऐड बैक कर देंगे एंड द अमाउंट इज 60,000. फाइन. सो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ गया 3,60,000 एंड इधर आ गया, इसको ऐड बैक किया 6,60,000. अब नेक्स्ट चेंज जो हुआ था वो हुआ था हमारा 1 अक्टूबर 2020. इसमें 1 अक्टूबर 2020 को सिमरत ने विड्रॉ किया है आउट ऑफ कैपिटल
तो सिमरत का तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है एंड दिस अमाउंट इज 2,40,000 ड्रॉइंग्स है, तो हम इसको ऐड बैक करेंगे। फाइन। और सेकंड पार्टनर बी ने इंट्रोड्यूस की कैपिटल, तो उसकी एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल एंड द अमाउंट ऑफ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इज 3 लाख। सो 3 लाख को हम सबट्रैक्ट करेंगे। अब बेटा ये करने के बाद मेरे पास सिमरत की कैपिटल आ गई 6 लाख और वीर की कैपिटल आ गई 3,60,000। अब ये जो कैपिटल आई है बेटा, ये तो आ गई ओपनिंग कैपिटल व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, है ना, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो ही चीजें हमने अभी पढ़ी थी। फिक्स कैपिटल अकाउंट में चेंजेस दो ही आइटम्स की वजह से होते हैं, एक या तो हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की हो या ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल की हो। तो ये जब मैंने चेंजेस किए तो मेरे पास ये जो फिगर्स आई हैं 6 लाख और 3,60,000, दीज आर द फिगर ऑफ opening capital when the partners capital account are fixed, when the partners capital accounts are fixed. I hope all of us have understood this concept. अब बेटे एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आपका जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है वो एडेड होगा, है ना। आपके ओपनिंग कैपिटल में नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडेड होगा। और जो ड्रॉइंग्स हैं, आपको बताया था कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल में, तो कैपिटल के साथ ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी इसमें से सबट्रैक्टेड होगी। तो जब अब हमने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है पार्टनर्स की, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आर फ्लक्चुएटिंग, देन लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब बेटा हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है। तो बेटा जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स थे तो हमारी ओपनिंग कैपिटल निकली थी 6 लाख और 3,60,000। अभी हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखा, तो जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के हिसाब से कैपिटल अकाउंट बने होंगे तो इसके अंदर प्रॉफिट्स एडेड होंगे, है ना। और प्रॉफिट्स मुझे जो दिए हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 2,40,000। तो हम क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, ये जो प्रॉफिट्स थे नेट डिविजिबल प्रॉफिट, इनको हम सबट्रैक्ट कर देंगे। सो द टोटल प्रॉफिट वाज 2,40,000 ड्यूरिंग द ईयर। दिस वाज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो सिमरत का शेयर आ जाएगा 2,40,000 into 3/5 which is equal to 1,44,000। अब प्रॉफिट है एडेड होगा तो हम ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इसको सबट्रैक्ट कर देंगे एंड वीर का शेयर आ जाएगा 2,40,000 का 2/5 which is equal to 96,000। फाइन। तो हमारे पास सिमरत की कैपिटल आ गई 4,56,000 और वीर की कैपिटल आ गई 2,64,000। अब बेटा इसके अंदर अब हम जो आपके ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स थे वो हम ऐड बैक करेंगे क्योंकि ड्रॉइंग्स हमने सबट्रैक्ट की हुई है। सो ऐड ड्रॉइंग्स, हमने जो ड्रॉइंग्स ऐड करी हैं जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है लास्ट लाइन में, सिमरत की ड्रॉइंग्स है 1,20,000, वी विल ऐड इट बैक क्योंकि ड्रॉइंग्स माइनस हुई होंगी ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए। फाइन। एंड देन second partner सिमरत की ड्राइंग है 60,000, दिस आल्सो वी आर गोइंग टू ऐड इट बैक। तो हमारे पास ड्राइंग को ऐड करके बेटा ये ड्राइंग्स मेरी आउट ऑफ फिर प्रॉफिट्स की।
इनको ऐड करके मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, एंड ओपनिंग कैपिटल इज 5,76,000 for Simrat and 3,24,000 for B. I hope the calculation of opening capital, with the help of when the partner's capital account are fluctuating is clear to everyone. Now opening capital are here with us. Now we are going to now very easily able to calculate the interest on capital. Now let's learn how to calculate the interest on capital. अब बेटा interest on capital हमने बोला था हमेशा जितनी capital use हो रही है during the year उस पे interest on capital लगेगा. अब हमारे दो पार्टनर्स हैं सिमरत और बीर. जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड हैं तब पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल हमें दे रखी थी, सिमरत की दे रखी है 6 लाख की, हमने कैलकुलेट करी थी, और बीर की ओपनिंग कैपिटल इज 3,60,000. फाइन. अब ये कैपिटल हमारे पास बेटे कब थी? ऑन 1 अप्रैल 2020. फाइन. अब पार्टनर्स ने ये कैपिटल 1 मंथ तक यूज करी है और उसके बाद सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी थी और बीर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली थी. फाइन. तो लेट अस फर्स्ट चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% फॉर 1 मंथ. एट द रेट ऑफ 6% फॉर 1 मंथ into 6/100 into 1/12. Similarly, बीर की कैपिटल ओपनिंग कैपिटल 3,60,000 थी, इसके ऊपर भी 6% के हिसाब से फॉर 1 मंथ. फाइन. और ये मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा. दिस विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड विल बी दिस इज 3,000 1 मंथ का सिमरत के इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर, और बीर का आ जाएगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे 1,800. फाइन. अब 1 मंथ के बाद क्या हो रहा है? 1 मंथ के बाद सिमरत 1 मई 2020 को एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रही है. सो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस वाज 1,20,000. तो बेटा 6 लाख से जब 1,20,000 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ गई 7,20,000 की. 6 लाख में 1,20,000 आप ऐड करोगे. देखो आप क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ है कि सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया ऑन 1 मई. तो 7,20,000 पे अगेन 6% इंटरेस्ट. नेक्स्ट जो कैपिटल में चेंज हो रहा है वो 1 अक्टूबर को हो रहा है. सो 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक हमने 7,20,000 यूज किए हैं. पहला वाला जो कैपिटल यूज 6 लाख और 3,60,000 दोनों पार्टनर ने 1 मंथ के लिए यूज किया था. फाइन. तो हमने 1 मंथ का इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया. सिमरत ने 1 मई को 1,20,000 इंट्रोड्यूस किया तो उसकी कैपिटल हो गई 7,20,000. इस पे 6% इंटरेस्ट फॉर नाउ 5 मंथ्स. 1 मई से लेके 1 अक्टूबर तक 5 मंथ्स होते हैं. और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सो वी आर गोइंग टू गेट the amount of interest as 18,000. फाइन. सिमिलरली बीर ने क्या किया था? बीर ने अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली थी 60,000 की. तो दैट वाज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल. तो बीर की कैपिटल हो गई 3 लाख की. 60,000 3,60,000 में से माइनस किया तो हमारे पास कैपिटल आ गई 3 लाख की. इसके ऊपर अगेन 6% इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स हमने कैलकुलेट किया तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास ₹7,500. फाइन. व्हेन वी कैलकुलेटेड
we'll get 7,500. अब नेक्स्ट हमारे पास जो कैपिटल में चेंजेस हुए वो हुए ऑन 1st अक्टूबर 2020. इसमें क्या किया, सिमरत ने विड्रॉ किया था आउट ऑफ कैपिटल 2,40,000. सो बेटा 7,20,000 में से अगर मैं 2,40,000 विड्रॉ कर देती हूँ तो मेरे पास कैपिटल रह जाएगी 4,80,000 की. ये कैपिटल सिमरत ने रेस्ट ऑफ द ईयर बिजनेस में यूज की, दैट इज टिल 31st of March 2021. तो इसके ऊपर इंटरेस्ट हमें लगेगा फॉर द नेक्स्ट 6 months इंटू 6/12. बी ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी 3 लाख की, सो 3 लाख प्लस 3 लाख ये कैपिटल हो जाएगी 6 लाख बी की. अगेन इसके ऊपर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% फॉर 6 months, नेक्स्ट 6 months. अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, दिस इज रुपीज 14,400 for Simrat interest on capital for 6 months and rupees 18,000 for B for next 6 months. Fine. अब बेटा अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालें कि सिमरत का कितना बनेगा when your partners capital accounts are being prepared by following fixed capital account method, तो हम इन तीनों को ऐड करेंगे 3,000 plus 18,000 plus 14,400. So the total interest on capital, let me write it over here, total interest on capital for the whole year will be rupees 35,400. आप इन तीनों फिगर्स को ऐड कीजिए, 3,000 plus 18,000 plus 14,400, you will get 35,400. बी के भी जब हम इनको ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 month, for next 5 months, for next 6 months. So the total interest on capital to be given to B by the firm for the whole year when the partners capital account are fixed will be 27,300. 27,300. Now similarly we are going to calculate the interest on capital when the partners capital account are fluctuating. ठीक है बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है, लेकिन अब फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि इस केस में ओपनिंग कैपिटल अब डिफरेंट हो जाएगी. हमने कैलकुलेट किया था सिमरत की ओपनिंग कैपिटल when the partners capital account were fluctuating was 5,76,000. Fine. And B's opening capital was 3,24,000. हमने ये अभी कैलकुलेट किया था. B's opening capital is 3,24,000. Same. See the tenure will be again. ये कैपिटल पार्टनर्स ने 1 month के लिए यूज की है, क्योंकि 1 month के बाद यही हुआ था कि पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी और बीर ने विड्रॉ कर ली थी. सो वी आर गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट फॉर 1 month एट द रेट ऑफ 6%, सो इनटू 6/100 फॉर 1 month, एंड दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी रुपीज 2,880. और बीर की कैपिटल के ऊपर भी जब हम इंटरेस्ट देंगे, बी के कैपिटल के ऊपर भी इंटरेस्ट सेम एट द रेट ऑफ 6% for 1 month, we are going to get the amount as rupees 1,620. Fine. So this was for the period from 1st April 2020 to 1st of May 2020. Fine. Up from 1st of May 2020 to 1st of October 2020,
सिमरत ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1,20,000 की, हम इसके अंदर 1,20,000 इंट्रोड्यूस करेंगे. 5,76,000 plus 1,20,000 is going to give me 6,96,000. इसके ऊपर अगेन 6% इंटरेस्ट फॉर 5 months. ये अमाउंट मेरे पास आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 17,400. फाइन. बीर ने 3,24,000 में से 60,000 की ड्रॉइंग्स करी थी. सो माय capital, Beer's capital for next 5 months will be 2,64,000. अगर आप 3,24,000 में से 60,000 withdraw करोगे, so you will be getting a figure of 2,64,000, जिसके ऊपर 6% interest for the next 5 months लगेगा, and this figure will be, ये figure हमारे पास आ जाएगी 6,600. The amount will be 6,600. Fine. Now the last step. Next, from 1st October 2020 से till 31st of March 21 तक सिमरत ने क्या किया था? सिमरत ने कैपिटल विड्रॉ की थी. Simrat has withdrawn 2,40,000. So if I subtract 2,40,000 from 6,96,000, आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2,40,000 सिमरत ने विड्रॉ किए. सो 6,96,000 में से अगर मैं 2,40,000 विड्रॉ करती हूँ तो मेरे पास कैपिटल आ जाती है 4,56,000 की, जिसके ऊपर इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 6% के हिसाब से फॉर नेक्स्ट 6 months विल बी 13,000 rupees, 13,680. फाइन. एंड बीर ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी. बीर हैज इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख. 3 लाख में इसमें ऐड करती हूँ, सो आई एम गोइंग टू गेट 5,64,000 कैपिटल ऑफ बीर फॉर द नेक्स्ट 6 months, जिसके ऊपर मैं 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगी. सो आई एम गोइंग टू गेट अ फिगर ऑफ 16,920. So it is 16,920. Fine. Now, if I am going to add, देखिए अब मैं टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, if I am going to add interest on capital given to Simrat for 1 month, then for next 5 months, then for last 6 months. So अगर मैं इन तीनों को ऐड करती हूँ 2,880 plus 17,400 plus 13,680. So the total interest on capital to be given to Simrat by the firm when the partners capital accounts are fluctuating are 33,960. And lastly, when I add the interest on capital for 1 month, for 5 months, and for the last 6 months for B, that is if I add 1,620, 6,600 and 16,920, I will be getting a figure of interest on total interest on capital, जो कि हम बीर को फर्म देगी. It is 25,000 rupees, 25,140. I hope that the solution of this problem is clear to everyone, and the distinction between drawings out of capital and drawings out of profit, ये कैसे आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन्फ्लुएंस करता है, this has also been made clear by this question. That's all for today from my side. Thank you very much.